Hello champions, welcome to the next lecture on the IIT JAM Mathematical Statistics. Today I will explain you how you can solve the question number 51 to 55 with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the mathematical statistics. You can see in this playlist complete mathematical statistics solutions are uploaded with the help of the shortcut tricks. You can follow it and subscribe my YouTube channel so that when I upload my next video, you will get the notifications. In addition, if you want to join with me, you can scan and join my free WhatsApp group. The target of this group is to provide the free knowledge with the happy learning. Now the question number 51 of the IIT JAM Mathematical Statistics is how you can find the area of the region. So that means you firstly target is to draw the graph. Y square is equal to 36x, that is a parabola. Find this equation of the y square is equal to 36x and the line y is equal to 3x minus 9. When x is equal to 0, y is equal to 9. When x is equal to 3, y is equal to 0. So the graph will be here. And your target is to find the area bounded by the parabola, line and the x-axis in the first quadrant. Fine. So my target is to find the area of this yellow color shaded portion. Fine. तो कैसे निकाल सकते हो? It's a very simple. If you look about that, if I draw the perpendicular from this, say O, A, B and the point C. Fine. So first of all, can you find this point of intersection? The line y is equal to 3x minus y and y square is equal to 3x. If I substitute the value 3x minus 9 whole square, which is equal to 36x, that will be 3 I can take as a common. So x minus 3 square is equal to 36x. I can cancel then you can open that x square minus 2ab minus of 10x plus 9 is equal to 0. X will be 1 and 9. So that point is x is equal to 1. This point is my 9. When x is equal to 9, fine, then the value of the y is my 18. So how you can find this area? It's very simple. If you find the area of the region OABO minus, you can find the subtraction from this area CAB. Fine. So how you can find the area? Y on this curve OABO, the curve is y square is equal to 36x और इस रीजन में आपकी x की वैल्यू कितनी है 0 to 9 माइनस CAB में आपकी ये लाइन बन रही है. लाइन इज माई 3x माइनस 9 ऑफ dx. x की वैल्यू कहां से 3 to 9. बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए. दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. x is 3/2 divided by 3/2 from 0 to 9. 3 is outside. x square by 2 minus 9x from 3 to 9. तो कितना आंसर हो गया? That will be 2, 4. Find 9 raised to power 3/2, that is at 27 minus 3. 3/2 is outside. X square, so 9 square is 81 and 3 square is 72. Minus plus 9 into 9 minus 3 is my 6. That number is 108. That is a 36. 108 plus 54. So the right answer is 54 is my correct answer of the problem. Look at the next one. Consider the real matrix A, B and C. The determinant of the matrix A is my minus 48. Determinant of the matrix B is my 2. And your target is to find the determinant of the C. काफी आसान है ये क्वेश्चन. देखने में मुश्किल लग रहा है बट इट इज अ वेरी इजी. यू कैन लुक अबाउट द सी बिकॉज हमारा टारगेट सी को है ना. पहले वैल्यू क्या है ए बी सी. तो पहले इस ए का ए ट्रांसपोज कर दो एंड वी ऑल नोज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ द ए ट्रांसपोज आर सेम. तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं ए बी सी देन 3D 3E 3F एंड 3 -2 1. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ द ए. फाइन. अब आप देखो वी ऑल नोस अगर मैं किसी रो में से 3 कॉमन निकाल दे रहा हूं
तो डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा। फाइन, और 3 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, दैट विल बी माई -16। तो ये बन गया ना आपके पास। सिमिलरली आप बी के लिए कर देते हैं। बी में क्या करते हैं, ए बी सी, इस लास्ट लाइन में से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूं और R2 और R3 को इंटरचेंज कर दे रहा हूं। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट में किसी भी रो को इंटरचेंज करते हो तो साइन क्या चेंज हो जाएगा आपका, नेगेटिव के साथ। सो -2 इज आउटसाइड, तो जैसे मैं -2 से डिवाइड करूंगा दैट विल बी माई -1। क्लियर। बस अब आपको क्या करना है, ये कांस्टेंट बनाना है इसके साथ। कैसे बना सकते हो आप, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो इस लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 फिर इससे माइनस कर देता हूं, -6 + 2 10 -1। तो इसका मतलब इस वाली इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके और इधर से माइनस कर दे रहा हूं। तो आंसर कितना हो गया, -2 and -16। सो दैट विल बी द 14 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। इट्स अ सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। A fair six-sided dice is rolled 4 times independently. P is the probability that the sum of the outcomes is 14. Small p is the probability that the sum of the outcomes is my 14. तो आपने 4 टाइम्स रोल करा है, इसका मतलब इसके 4 ऑप्शंस आएंगे, x1 + x2 + x3 + x4 इज इक्वल टू 14। ये आपका टारगेट है। फाइन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज की वैल्यू डाइस है तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 हो सकता है। अगर आपको याद हो, इसी IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में एक मैंने आपको अप्रोच बताई थी, x1 + x2 + xk विच इज इक्वल टू n, और each of the exercise are my greater than 0, then how many ways you can find the values of the exercise, that will be n + k - 1 c k - 1। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यहां पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप यहां पे देखो ग्रेटर देन 0 नहीं है ना, तो आई कैन टेक, मैं क्या करता हूं, एक्सआइज -1 को एक नया नाम ले लेता हूं, लेट्स से yi। फाइन, तो ये लोअर लिमिट 0 बन जाएगी, तो लोअर लिमिट विल बी 0 और अपर लिमिट क्या बन गई 5। दोनों तरफ से -1 करेंगे तो यहां पे x1 की वैल्यू फिल कर दो, x1 विल बी 1 + y1, 1 + y2, 1 + y3, 1 + y4। तो आपका सोल्यूशन बन गया y1 + y2 + y3 + y4 किसके बराबर हो गया, 4 उधर जाके माइनस हो गया, दैट इज 10। सो दैट विल बी 0 yi लेस देन ऑफ 5। तो जैसे ये ग्रेटर देन 0 बना तो कितने नंबर ऑफ द केसेस बन गए आपके पास, n + k, k is my 4, c of k - 1, 4 - 1, that will be 13 c3। क्लियर। ये तो हो गया आपके पास ग्रेटर देन 0 के लिए। अब आप इसको ग्रेटर देन 0 नहीं बना सकते, बट आपको पता है कि 6 साइडेड डाइस है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी वाई आइस क्या हो सकती है आपके पास, 6 तक जा सकती है ना। तो 0 से 5 के बीच में काउंट करने की बजाय अगर मैं ये काउंट कर दूं कि वाई आइस ग्रेटर देन 6, यही तो बच गया ना आपका, अदर देन ये वाला चीज मैं इसमें से माइनस कर दूं ये टोटल केस में से, तो आपके आंसर हो जाएंगे। मतलब अगर आपके पास ये 4 केसेस हैं, इसका सम कितना होना चाहिए 10, तो वो सारे केस कर लेते हैं जिसमें आपका 6 आ रहा हो। मान लो जैसे पहले पे 6 हो गया, दूसरे पे 6 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज सम आपको 10 चाहिए ना। तो यहां पे तो 10 आपका सम कितना हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब एक में कम से कम एक ही वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 6 आएगी। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको आसान बनाने के लिए Z1 को ले लेता हूं y1 - 6, तो ये ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। तो इसमें फिल कर देता हूं, तो Z1 + y2 + y3 + y4, ये कितना बन गया आपके पास 4। तो फिर से देखो यहां पे क्या हो गया आपके पास, Z1 इज ग्रेटर देन 0, तो Z1 के कोरस्पॉन्डिंग फिर से निकाल देता हूं, n + k - 1 फाइन डिवाइडेड बाय 4 - 1, तो कितना हो गया 7c3। ये तो वो केस है जब आपने y1 को लिया है, बिकॉज ये ऑल आर माई इंडिपेंडेंट, तो आप y2 को भी तो ले सकते थे ना, इंस्टेड ऑफ यू कैन टेक एन एज y2 - 6।
फाइन, तो कितने टाइम्स आपने लिया है? 4 टाइम्स, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फाइनल आंसर कितना हो गया आपके पास? सो टोटल कितने वेज थे आपके पास? 13C3, उसमें से ये केस माइनस कर देते हैं, 7C3 डिवाइडेड बाय, बिकॉज हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी ना, सो टोटल केसेस कितने होंगे? 6 की पावर 4। क्लियर? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 13C3 कितना होगा? इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। 13C3, 13, 12, 11, 3, 2, 1, 3 2 या 6, so that will be 26 into 11, 282, minus 7C3, 765, 321, so 35, 35 into 4, 140 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 4, तो ये कितना हो गया? 2, 4, 142, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 कितना होगा? 6 की पावर 2 36, 36 इंटू 36 1296, यही आएगा। 18 19 20 21, 6 थी 18, 9 1 10, 691296, और बाद में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको डिवाइड कर लेना आप, जितना भी आपके पास कैलकुलेटर हो आपके पास, अगर आप उसका यूज कर सकते हो, सो दैट विल बी 1.127 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। 3 डेसिमल तक बोला ना आपको, इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। Look at this next one. X is a random variable with the probability mass density functions. Z is x minus 1, M is the median. M is the median. So क्या definition होती है median की? Less than equal to M is my half. लेकिन आपको PDF आपको x का दिया हुआ, तो आपका टारगेट इसको x में बनाना, तो मैं z की वैल्यू फिल कर दे रहा हूं। z कितना आपका? x minus 1, तो ये आपके पास, ठीक है, तो इसको मैं ओपन भी कर दे रहा हूं, माइनस m x minus 1, ऐसे लिखा जाएगा ना। फाइन, तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस एम, लेस देन x, लेस देन 1 प्लस m। क्लियर? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेशन 1 माइनस एम, 1 प्लस एम इंटू PDF, तो मैं x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइन, विच इज इक्वल टू हाफ। तो सॉल्व कर लो, 3/4 इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन इज, ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो आप अपर एंड लोअर लिमिट फिल कर दो, 1 प्लस एम स्क्वायर, लोअर लिमिट इज 1 माइनस एम स्क्वायर, माइनस 1 प्लस एम क्यूब माइनस 1 माइनस एम क्यूब, विच इज इक्वल टू 1/2। फाइन, तो यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं इसको, सो दैट विल बी 3/4, ये कितना हो गया? ए स्क्वायर विल बी कैंसल, बी स्क्वायर विल बी कैंसल, 2ab एंड 2ab, दैट्स 4m, माइनस 1/3, 1 and 1 विल बी कैंसल, m क्यूब एंड m क्यूब, दैट इज 2m क्यूब। उसके बाद क्या बन जाएगा? दैट इज 3abc। फाइन, सो 3a 3m प्लस 3m इज 6m, and 3m square and 3m square will be cancel, which is equal to half. ये it will be 12m minus 2m cube minus 6m divided by 3, और 3/4 को मैं राइट साइड पे ले जा रहा हूं, so that will be 1/2 into 4/3। क्लियर? तो ये कितना बन गया? इस my 6m minus 2m cube which is equal to 2, और ये 3 से 3 कट गया, 2 से डिवाइड कर दो, 3m माइनस एम क्यूब इज माई 1। तो आपको क्या पूछा है? 12m माइनस 4m क्यूब, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सो द राइट आंसर इज 4 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। लुक एट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज अ ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शंस, और x, दिस इज अ डिस्क्रीट प्रॉब्लम। फाइन, वेरी वेरी सिंपल। देखिए कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट में जिसपे एक्सपोनेंशियल आता हो? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस्ट पावर x ओवर x फैक्टोरियल। तो पहले उसकी फॉर्म में बना लेते हैं, 3 की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। बाकी जो रह गया उसको अलग कर दो, एक तो 2 रह गया आपके पास। फाइन, 3 की पावर x, एक मैंने 3 की पावर x ले लिया, सो दैट विल बी x माइनस वाई, अलग कर दिया, और 3 की पावर -1 को मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर? दैट इज माई CDF।
तो ये इसका मतलब ये किसको फॉलो कर गया, x फॉलोस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 3, और ये किसको फॉलो करेगा, यहां से y माइनस एक्स कितना हो जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इसको पहले y माइनस एक्स में बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका पहला पार्ट 2/3 y माइनस एक्स, तो इसको 1/3 कर देते हैं। तो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, ये आपका, दैट मीन्स y माइनस एक्स को मैं h ले रहा हूं, फाइन। सो h फॉलोस इस ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर 2/3। यही तो बनाना आपका, दैट्स ओवर। तो आपको पूछा कि अब आपको h इज y माइनस एक्स, आपको पूछा वेरिएंस ऑफ द y, सो y माइनस एक्स इज माई h, so variance of the y, because x is my fixed value, so variance of the constant value will be 0, which is equal to variance of the h। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वेरिएंस इज q by p square if your h will be start from the 0 1 2 and so on, otherwise it will be 1 by p square अगर आपका रैंडम वेरिएबल 1 से स्टार्ट है। लेकिन आप यहाँ देखो 0 से स्टार्ट है ना, तो आपका वेरिएंस क्या होगा q by p square, दिस इज द वैल्यू ऑफ दी p। तो आप निकाल दो q कितना हो गया 1/3 डिवाइडेड बाय 4/9, सो आंसर कितना हो गया 3/4 इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम, फाइन। So you can see that whenever you have a joint density function, always try to find the distribution functions. Fine, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है ना कंडीशनल में, तो कंडीशनल में अगर 2 है दैट्स अ कांस्टेंट, वेरिएंस ऑफ द कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको इन पांचों में जो ना समझ में आया हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल री अपलोड द सोल्यूशन फॉर यू। और अदरवाइज आप मोर डिस्कशन के लिए यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, हम उस पर भी डिस्कशन डीपली कर सकते हैं, फाइन। I will upload the next part very soon. Till then, you can share this video with your friends. Like and comment on the video. Best of luck, students. Happy learning.